Hello students, how are you? I hope you are enjoying the video lectures. So, I Amit Kumar again welcome you all in IIT Manthan. So, lot of video lectures are daily uploading in the YouTube channel. So, I hope that you people are enjoying video lectures. So, this is only advice for those students, those who are not going through the video lectures and they are not submitting the assignments respectively. So I don't know what is the reason, but this is a bad sign. So if you are really concerned about your studies, so if we people are trying so much effort and put our best, so you should also try to make your best effort to make the problems resolved out. So please, again and again, I am advising all the students, those who are not going through video lectures as well as not going through the assignments. So in the meantime, if they are going through video lectures, they can understand the things easily, and on the basis of video lectures only and only then you can solve the assignments. And then there is a test also. So for a test, a student can perform well whenever he or she is doing assignments and going through video lectures. So kindly, it's my personal advice to all the students, those who are not going through video lectures and not submitting assignments properly. So kindly be attentive and try to make your best efforts to make the things resolved out. So don't hesitate, don't have any doubt in your mind regarding any topic. Whatever the doubt you are having, you can chat in the WhatsApp group which you have created just 2 days ago. So please be sincere, be punctual, be regular. So as this is your board class, so 10th class is a board class, so I would like to advise all the students to be regular, punctual and be attentive. So these 3 things should be followed by every student, because it is a board class. So if you want to score good in exam, all 3 things should be necessary. So okay, let us start with our light chapter. So in the last lecture we did the solution of assignment. So let us start with our next assignment. So in the next assignment, that is your assignment number 20. So in assignment number 20, in the very first question, you will be given magnification, that is negative. तो आपको magnification क्या दी हुई है? Negative दी हुई है, and distance of the object is 50 centimeter from the mirror. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर से. आपको क्या निकालना है? टाइप ऑफ मिरर, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और आपको रे डायग्राम भी बनाना है. तो लेट अस स्टार्ट. So I think board is clear to you. It is clearly visible. Okay. LSA, Light Subjective Assignment number 20th. So 20वीं असाइनमेंट कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है कितनी? -1 और ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है मिरर से. और हमें क्या निकालना है? हमें टाइप ऑफ मिरर बताना है. हमें वी भी निकालना है, एफ भी निकालना है, और हमें रे डायग्राम बनाना है. तो लेट अस स्टार्ट. सो इन द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया हुआ है और U50, इट मींस U शुड बी नेगेटिव. तो हमें पता है एज फार एज कंसर्न टू कन्वेंशंस, जहां तक हम कन्वेंशंस की बात करें
तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, कितना है, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही होती है, एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो अगर आपको ध्यान हो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कहां होती है, ये आपकी कॉनकेव मिरर में होती है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर कहां कहां होती है, जहां तक ऑब्जेक्ट आपकी सिर्फ इन्फिनिटी से फोकस की दूरी पर ही रखी गई हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसमें क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो u आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, f आपका फोकल लेंथ है। हमें क्या निकालना है, तो हमें ना हमारे पास फोकल लेंथ है, ना ही v है, तो m से स्टार्ट करते हैं। m, तो m क्या है, -1, और ये क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू -1, सो इट मीन्स v इज इक्वल टू u, ठीक है। तो हमें v निकालना है, तो 1/v प्लस 1/v f भी नहीं है हमारे पास, तो सॉरी, तो u ले लेते हैं, दिस इज u एंड दिस इज u, तो 2/u इट इज इक्वल टू 1/f, तो इट मीन्स ट्वाइस ऑफ f इज इक्वल टू u, ट्वाइस ऑफ f, u कितना है, -50, तो f कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, f कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, इन्फिनिटी से फोकस के बीच में रखी हुई है, फोकल लेंथ ये आ गया। v निकालना, v कितना है, v उतना ही इतना u है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v भी -50 है, v कितना है, -50 है, ठीक है, v -50 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट भी आपकी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ऑब्जेक्ट की इमेज भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे मिली, इसका मतलब क्या हुआ, मिरर में सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो और सेम ही पॉइंट पे आपको इमेज मिले, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखी होती है, ऑब्जेक्ट इज एट C, देन द इमेज विल एट C एंड एट सेम साइज। सेम का मतलब क्या हुआ, समथिंग बाय समथिंग इज 1। तो यहां सीधा पता लग रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 आई आपकी, नेगेटिव है पॉजिटिव बाद की बातें हैं, तो इमेज कहां होगी, C पे, और ऑब्जेक्ट कहां पे होगी, C पे होगी। लेट अस ट्राई टू मेक द रे डायग्राम। तो मिरर कौन सा होगा ये, देखो U और F नेगेटिव होते हैं और V भी नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में। सिंपल कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, C पर है, तो ये कितना है, ये आपका 50 सेंटीमीटर है, यही आपकी U है और यही आपकी V है। तो ऑब्जेक्ट हमारी थी C पर, तो लाइट ऐसे गई पैरेलल, फोकस से पास हुई, दूसरी लाइट रे फोकस से निकली और ये ऐसे पास होगी, तो इमेज कहां बनी, ये बन गई इमेज, कहां बनी, दिस इज, तो ये क्या पॉइंट कौन सा है, C। तो A B A डैश B डैश, तो देखो आप इमेज भी यही बन गई, ठीक है। तो दिस इज द रे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट आपकी जितनी दूरी पे होती है, आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगी, तब जब आपने ऑब्जेक्ट को C पर रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, एक बार अगर आपको मिरर और लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है जो वैक्यूम में होता है, कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी निकालनी है मीडियम में, तो आपको वैक्यूम में दी हुई है और मीडियम में निकालनी है, और म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है दैट इज 1.5। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी इन वैक्यूम कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको V निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो आपको मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निकालनी है। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, सो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू कितना है, सी अपॉन वी है। सी इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 बाय वी निकालना है। तो V विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 बाय 1.5। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जब आप असाइनमेंट नंबर 20 कर रहे होंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आर फ्रॉम द प्रिज्म। तो ये जो प्रिज्म वाला टॉपिक है ये आपका मैं ह्यूमन आई के साथ कराऊंगा। जब हम ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे तब उसको मैं टॉपिक का कराऊंगा। तो आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड। तो जिन्होंने कर लिया है, जब हम ह्यूमन आई चैप्टर करेंगे वहां जब न्यूमेरिकल करेंगे, प्रिज्म को डिस्कस करेंगे, तब हम उनको आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। क्लियर। सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने ये टॉपिक ही नहीं कराया, क्योंकि ये टॉपिक आता है ह्यूमन आई में। ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, कितना है -4 डियोप्टर। -4 डियोप्टर यू विल बी गिवन इन सिक्स्थ क्वेश्चन। पावर कितना है -4 डियोप्टर। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर आपको दी हुई है और आपको नेचर ऑफ लेंस बताना है, मींस लेंस कौन सा है, वेदर इट इज कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगा। इट मींस वी नो दैट इन कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इट मींस वी कैन से दैट दिस इज ए कॉनकेव लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होती है, एफ इज नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस में आपका U भी नेगेटिव होता है, F भी नेगेटिव होता है और V भी नेगेटिव होता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड योर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑल थ्री आर नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो जैसे कि सेवंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि what is the type of the mirror if image is erect enlarged। तो आपकी इमेज क्या है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो माइंड में ये आना चाहिए कि जब भी वो पूछ रहे हैं कि मिरर बताना है, और वो मिरर जिसकी इमेज क्या है, इरेक्ट है और एनलार्ज मींस मैग्नीफाइड, इट मींस मिरर आपको बताना है और इमेज क्या है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड। व्हाट इज एनलार्ज, मैग्नीफाइड।
तो जो इरेक्ट होगी वो आपकी वर्चुअल भी होगी। तो सबसे पहली बात आपकी आनी चाहिए मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज जो आपकी होती है वो सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही आती है, ठीक। तो इसका मतलब आंख बंद करके ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में यू विल फाइंड द वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और पोजीशन बता देता हूं, जब हम ऑब्जेक्ट को, ये आपका एक्सेप्शनल केस है अगर आपको ध्यान हो, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और किसके बीच में कर रहे हैं, फोकस के बीच में रखते हैं, देन वी विल ऑब्टेन द इमेज बिहाइंड द मिरर लाइक दिस। दिस इज एफ, दिस इज सी। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, पहली रे एफ से गई, दूसरी रे this image, this is A dash, B dash, this is A, B. So you can see here in concave mirror we are having erect, virtual, and this is virtual dotted lines, means the image is appear to meet, image is obtained after the rays appear to meet, कि जो लाइट रेज है वो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, वो यहां मिली तो हमने ऐसे बना दिया। तो मीन्स इन दिस इज ए कॉनकेव मिरर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 8th क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी सी पर है, ऑब्जेक्ट सी पर है, तो आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है और साइज बताना है। तो सिंपल सा है, तो ऑब्जेक्ट सी पर है, एट का मीनिंग ये हुआ कि ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो ऑब्जेक्ट आपकी सी पर है, तो लाइक दिस, ठीक है। पहली रे पैरेलल गई, फोकस से निकलेगी, कोई रे रिफ्लेक्ट होगी तो, दूसरी रे मैंने फोकस से निकाल दी, इट विल गो लाइक दिस। सो ए बी, ए डैश बी डैश। तो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट सी पर है, ऑब्जेक्ट एट सी v कितना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो m हमारा क्या आएगा, m -1 आएगा। m कितना आएगा, -1 आएगा। तो m -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि -v/u इज इक्वल टू -1 एंड v इज इक्वल टू u होगा। मीन्स जहां ऑब्जेक्ट है वहीं, तो मीन्स v भी क्या होगा, v भी c होगा। c मतलब 2f, तो v 2f होगा और u भी 2f है, तो u भी 2f होगा और v भी 2f होगा। क्लियर है? और साइज क्या होगा, सेम साइज, साइज इज। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए कि मिरर के केस में कहां क्या चीज क्या कैसे किस तरह से होती है, ऐसे लेंस के केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। In 9th question, you will be given height of the object, that is 15 centimeter, or lens is a diverging lens. So in diverging lens, u, f and v all are negative. तो सिंपल है, पहले आपने लेंस बनाया, जैसे ही लेंस देखा आपने तुरंत माइंड में स्ट्राइक किया कि आपका जो u होगा वो नेगेटिव है, वो कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। जो f है वो भी नेगेटिव आएगा, कितना है 25 सेंटीमीटर। आपको h भी दिया हुआ है, h हमेशा पॉजिटिव होता है बिकॉज डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज हाइट, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो h दे रखा है, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, h डैश निकालना है और आपको नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज बताना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। So
लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. So 1/v is equal to 1/f plus 1/u. 1/f. So 1/f is 1 by minus 25 plus 1 by minus 75. So minus 25 minus 75, it will be LCM is 75, it is minus 3, it is minus 1. So मैं इसको यहां लिख रहा हूं आगे 1 by v is equal to minus 4 by 75 and we can write v is equal to minus 70 by 4 सेंटीमीटर. तो चेक कर लीजिए कि कॉनकेव लेंस में u माइनस 75 है तो v भी नेगेटिव आएगा. हमने कहा था कि u f और v नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, v f कितना है माइनस 25 है, u कितना है 75. एलसीएम में 75, 25 3 75 तो माइनस 3 आ गया. इट इज माइनस 1 तो माइनस 4 25. इसको उल्टा किया तो v कितना आ गया माइनस 75/4 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, तो v नेगेटिव आ गया. हमने कहा था कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सभी तीनों नेगेटिव होते हैं. h डैश होता है आपका v बाई यू. तो h डैश इज इक्वल टू v बाई यू इंटू h डैश. v कितना है माइनस 75/4 डिवाइड बाय माइनस 75 इंटू 15. तो दिस विल बी कैंसल आउट, माइनस कैंसिल हो गया. कितना आ गया h डैश इज इक्वल टू 15/4. ठीक है, कितना आ गया h डैश 15/4 आपका h डैश आ गया. तो h डैश इज इक्वल टू 15/4. तो v कितना आ गया माइनस h डैश कितना आ गया 4. इट मींस इरेक्ट आएगा. तो इरेक्ट आया, ठीक है, v माइनस इधर ही आएगा और इधर बना तो मींस क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है तो इसमें रे ऐसे जाएगी, कहीं यहां मिलेगी और दूसरी रे मान लो जब कहीं भी है वो ऐसे में तो इमेज यहां बनेगी. तो हमेशा क्या बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड. इसका पता लगेगा h डैश बाई h. h डैश कितना है 15/4, h कितना है 15 है तो कितना आएगा m will be equal to h डैश बाय h 15/4/15 कितना आ गया 1/4 दैट इज 0.25. तो इट मींस ये क्या है, ये क्या है लेस देन 1 है. इट मींस डिमिनिश्ड है. क्या है डिमिनिश्ड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. आपको बस लेंस का क्या फर्क है, कॉन्वेक्स है. तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो जो v निकालोगे वो भी पॉजिटिव होगा और m निकालोगे और आपको नेचर निकालना है तो आप निकाल सकते हो इजीली. कम ऑन टू 11th क्वेश्चन. तो 10th क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो. कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और v भी पॉजिटिव होगी अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है. ठीक है, तो v आपका पॉजिटिव होगा तो आप निकाल सकते हो इजीली. सो आई एम नॉट ट्राइंग हियर 10th क्वेश्चन. सो आई एम कमिंग टू 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन. तो 11th क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस है, हाइट दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर. तो हाइट पॉजिटिव होती है हमेशा. u इज ऑलवेज माइनस तो 25 सेंटीमीटर दे रखा है और v आपको निकालना है, m भी निकालना है और आपको h डैश निकालना है. ठीक है, तो h 15 है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v. सो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. क्योंकि कन्वेक्स लेंस आपका है इट इज प्लस 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो f इज 20 प्लस u इज माइनस 25 सो 1/v
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इट इज 100, 25 and it is -4, it is 1 by v. So we can write 1 by v is equal to 1 by 100. तो v क्या आ जाएगा, it is 100. तो v कितना आ गया, पॉजिटिव. तो मैंने क्या कहा था, अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है तो आपका v क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव आएगा. तो v पॉजिटिव आ गया. m इज योर v by u. v कितना है 100 एंड u इज -25, सो इट इज -4. तो m क्या आ गया, m इज -4. सो m इज -4, सो इट मीन्स मैग्नीफाइड आएगा. और s डैश क्या होगा, h डैश विल बी इक्वल टू v by u into h, और यू कैन से h डैश इज इक्वल टू v by u कितना आया, m है, m कितना आया -4 into h, h क्या आया 15, कितना आ गया, h डैश विल बी इक्वल टू -60 सेंटीमीटर. तो क्योंकि h डैश नेगेटिव है तो देखो जरा बना के देखें इसको. कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है, f1 to f2 to f2, f1 to f1 एंड दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, 25 सेंटीमीटर पे है. तो पहले एक बार देख लेते हैं. तो फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है. दिस इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 होगा. ठीक है, 25 ऑब्जेक्ट यहां पर होगी आपकी. कहां है, बिटवीन f1 टू f1. तो कहां बनेगा, बियॉन्ड टू f2 बनेगा. तो ये लाइट रे ऐसे ही गई, फोकस से गुजरेगी, दूसरी लाइट रे सेंटर से गुजरेगी लाइक दिस. तो कहां बनी, यहां बनी a डैश b डैश एंड a b. क्लियर. सो विद दिस वी कैन से दैट h डैश इज -4. तो ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 60 सेंटीमीटर है आया. दिस इज योर हाउ मच, 60 सेंटीमीटर. और ये कितना है आपका, दिस इज योर 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 20 है और u कितना है -25 है, मतलब 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट कहां था आपका, ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है. सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका f1 और 2f1 के बीच में है. तो इमेज कहां आएगी, बियॉन्ड 2f2 आएगी. इट विल बी रियल, inverted and magnified. Reloaded and magnified. So in this way we can say that the image obtained in case of convex lens is always real, inverted and magnified until or unless the object is placed between optical center and focus. तो जब तक हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में नहीं रखते हैं, इट मींस इंफिनिटी और फोकस f1 के बीच में रखेंगे, तो हमारी इमेज क्या आएगी, रियल आएगी, इन्वर्टेड आएगी और मैग्नीफाइड आएगी, जिसको हम RIM बोलते हैं. मैंने कल आपको लेक्चर भी दिया था, स्पेशल लेक्चर, इसमें ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि लेंस और मिरर की याद करने की. तो क्या था, रिम, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड. और इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस यू ऑलवेज गेट वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज. हमेशा आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगी कॉन्केव लेंस में. और क्योंकि कॉन्केव लेंस से आपका कॉन्वेक्स मिरर बनता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्केव मिरर बनता है, तो कॉन्केव मिरर में भी वही चीज होगी, इमेज आपको मिलेगी रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड अंटिल और अनलेस इट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस. ठीक है, सो विद दिस your assignment number 20th is complete, and 10th question I have not tried here because it is having same as in the 11th question. So you can try yourself and you can try to confirm the answer with the type of the lens or the whatever it is given. So thank you so much. Stay at home, take care, be safe.